ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ تلنگانہ میں کانگریس حکومت کا 1 سال مکمل، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا ٹویٹ۔ پونم پربھاکر کی گورنر KCR اور کشن ریڈی سے ملاقات، تلنگانہ تلی کے نقاب کشائی تقریب میں شرکت کی دی دعوت۔ اراولی میں کل BRS پارٹی کا لیجسلیٹو اجلاس، اہم موضوع پر ہوگا تبادلہ خیال۔ تلنگانہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا تاجر خواتین پروگرام، وزراء بھٹی وکرمارکا و سیتاکا نے کی شرکت و کیا خطاب۔ چار مینار کے دامن میں تلنگانہ کانگریس حکومت کی سالگرہ کی تقریب کا انعقاد، تقریب سے پونم پربھاکر اور دیگر نے کیا خطاب۔ تلنگانہ کے محبوب نگر میں زلزلے کے جھٹکے، کوئی نقصان کی اطلاع نہیں۔ حیدرآباد میں ایمبولینس کی چوری، فلمی انداز میں پولیس نے چور کو کر لیا گرفتار۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ مسلح افواج کے فلیگ ڈے کے موقع پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے انہیں 1 لاکھ روپے کا عطیہ دیا۔ اس موقع پر ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کرنل P رمیش کمار، ڈائریکٹر آف سینک ویلفیئر سرینیش کمار اور سپرنٹینڈنٹ اسلم و دیگر نے شرکت کی۔ ریونت ریڈی نے اس موقع پر مسلح افواج کی خدمات اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہماری فوجی بھائیوں کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ کہا یہ فنڈ ان کی فلاح و بہبود کے لیے ایک چھوٹا سا قدم ہے۔ اس تقریب میں موجود افسران نے وزیر اعلیٰ کے جذبے کی تعریف کی اور اس عمل کو دوسروں کے لیے مثال قرار دیا۔ تلنگانہ کے محبوب نگر ضلع کے کچھ علاقوں میں ہفتے کو ہلکے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ حکام کے مطابق اس کی شدت 3.0 درج کی گئی۔ یہ جھٹکے معمولی تھے اور کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ حال ہی میں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کی شدت 5.3 ریکارڈ کی گئی۔ حکومت کی 1 سال کی تکمیل کے موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، تلنگانہ میں عوامی حکومت کے قیام کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ سونیا اماں کی تحریک اور کھرگے جی کی قیادت، راہل گاندھی جی کی محنت، پرینکا گاندھی جی اور KC وینوگوپال جی کے عزم کے ساتھ تمام مشکلات کے باوجود کانگریس نے تلنگانہ میں عوامی حکومت تشکیل دی۔ انہوں نے آگے لکھا، کانگریس کے سیاسی اقدار اور نظریات پر عمل کرتے ہوئے کسانوں، خواتین، نوجوانوں، دلتوں، قبائلیوں، OBC اور اقلیتوں کا سماجی اتحاد قائم کیا گیا۔ کہا جس نے تلنگانہ پرجا پربھوتم کی بنیاد رکھی۔ تلنگانہ کے وزیر پونم پربھاکر نے حکومت کی جانب سے اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے تلنگانہ گورنر جشنو دیو ورما سے ملاقات کی اور انہیں 9 تاریخ کو تلنگانہ تلی کے مجسمے کی نقاب کشائی کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی۔ بعد ازاں وزیر پونم پربھاکر نے مرکزی وزیر کشن ریڈی اور سابق وزیر اعلیٰ KCR سے بھی ملاقات کی اور انہیں بھی تلنگانہ تلی کے مجسمے کی نقاب کشائی تقریب میں مدعو کیا۔ وزیر نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت کی جانب سے تمام شخصیات کی عزت اور افزائی کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ان تمام ملاقاتوں کا مقصد صرف اور صرف تلنگانہ تلی مجسمے کی نقاب کشائی کے پروگرام کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام ملاقاتیں سیاسی نہیں تھیں، ہم نے صرف پروگرام میں شرکت کے لیے دعوت دی ہے۔ تلنگانہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام ہریتا پلازا میں خواتین اور نوجوان کاروباری افراد کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک خصوصی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے وزیر پنچایت راج، دیہی ترقی، خواتین و اطفال بہبود سیتاکا نے شرکت کی اور خواتین کی معاشی ترقی کے لیے حکومتی اقدامات پر روشنی ڈالی۔ اس کے علاوہ اس پروگرام میں نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے بھی شرکت کی اور خواتین کی کاروباری ترقی کے لیے حکومت کی کوششوں کی تعریف کی۔ وزیر سیتاکا نے کہا کہ ہماری حکومت ہر سال 20 کروڑ روپے کے بغیر سود کے قرضے فراہم کر کے خواتین کو معاشی طور پر مضبوط کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خواتین کی تنظیموں کو مختلف موضوعات پر تیار کرنے اور ان کی مارکیٹنگ کے لیے سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے اس موقع پر کہا کہ خواتین کے کاروباری ترقی کے لیے حکومت نے کئی اقدامات کیے ہیں اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خواتین کی خوشحالی سے ہی
معاشرے की खुशहाली मुमकिन है। అందరికీ సపోర్ట్ ఉంటాం। తప్పకుండా మీరు అందరూ అద్భుతంగా రాణించి మీ యొక్క సక్సెస్ స్టోరీను ఒక బుక్ రూపంలో తీసుకొస్తే ఇంకా చాలా మందికి ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉంటది, వారు కూడా ఈ రంగంలోకి రావడానికి అవకాశం ఉంటది। మనం కుటుంబాన్ని ఎంత అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దగలుగుతామో, ఒక కుటుంబం సంతోషంగా ఉంది అంటే అందులో ఆ మహిళ యొక్క పాత్రనే ప్రధానంగా గొప్పగా ఉంటది। ఒక రోజు భర్త తీసుకొచ్చి ఇచ్చినా ఇయ్యకున్నా, ఒక రోజు తండ్రి తీసుకొచ్చి ఇంట్లో ఏమి ఇచ్చినా ఇయ్యకున్నా, ఉన్న దాంట్లో ఆ కుటుంబాన్ని సంతోషంగా ఉంచాలని ఎట్లయితే ఆడవాళ్ళు తాపత్రయపడతారో, ఈ సమాజంలో కూడా మహిళలు అన్ని రంగాలలో రాణిస్తే తప్పకుండా ఆ సమాజము హ్యాపీగా ఉంటది, మరి సంతోషంతో వర్ధిల్లుతుంది। కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆర్థిక వ్యవస్థను మన కుటుంబంలో మరి నెలకు ఒక 5,000 రూపాయలు వస్తే ఆ కుటుంబాన్ని ఎట్లా పోషించాలని లెక్కలేస్తారో, ఈ రోజు మీరు పెట్టుబడి పెట్టి 5,000 పెట్టుబడి పెడితే దాని మీద ఎంత మనం పెట్టుబడి పెట్టినాం, ఎంత దానికి మనకు రిటర్న్స్ వస్తున్నాయి అనేది కూడా మీరు లెక్కలేసుకోగలుగుతారు। కాబట్టి చిన్నగానే స్టార్ట్ చేయాలి, కానీ పెద్ద ప్రపంచాన్ని టార్గెట్ పెట్టుకోవాలి, బట్ చిన్నగా స్టార్ట్ చేయాలి। నా ఉద్దేశం లక్షలు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి నష్టాల్లోకి వెళ్లకుండా తక్కువ తోటి స్టార్ట్ చేసి ఒక్కొక్క స్టెప్ ఇప్పుడు ఎంతో మంది సక్సెస్ఫుల్ లీడర్ అంటే బిజినెస్ పర్సన్స్ పచ్చళ్ళు, పేపర్లు, లేకుంటే ఇట్లా ఏదేదో అన్ని స్టోరీస్ ఉన్నాయి। చాలా మంది చిన్న జాబ్స్ తోటి, చిన్న వ్యవస్థతోటి అక్కడ లోకల్ గా పబ్లిక్ యొక్క డిమాండ్ ఏముంది, ఆ డిమాండ్ కి తగ్గట్టుగా మనం ఆలోచన చేసుకొని, అరే ఇక్కడ ఈ పబ్లిక్ ఎక్కువ ఇది వాడతారు కాబట్టి ఇది ఎక్కడో హైదరాబాద్ పోయి తీసుకొస్తారు, మనది ఒకవేళ ఊరు అయితే, లేకుంటే ఆ పక్కన ఉన్న జిల్లా మెయిన్ హెడ్ క్వార్టర్ లో పోతారు। అంతేందుకు మన లోకల్ ని మనం ఇది ఒకటి తయారు చేసి పెడదాం అనే। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असम्बली इजलास में साबिक़ वज़ीर आला KCR को शिरकत की दावत दी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि असम्बली में अपोजिशन लीडर की खाली नशिस्त रियासत के लिए अच्छी बात नहीं है। उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया कि पिछले 10 सालों में रियासत में हुक्मरान और अपोजिशन जमातें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरह लड़ने वाले दुश्मन के डेरों में तब्दील हो गई है। उन्होंने KCR पर जोर दिया कि वो क़ानून-साज़ असम्बली के सरमाई इजलास में शिरकत करें और हुकूमत से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवाल करें। रेवंत रेड्डी ने KCR को मशवरा दिया कि वह साबिक़ वज़ीर आला व साबिक़ वज़ीर अपनी जहानत और तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए हुकूमत को मशवरे और तजावीज़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि KCR उम्र और तजुर्बे में बड़े हैं, वो अपनी सीनियरिटी को बरकरार रखें और बच्चों को मालूमात फ़राहम करते हुए इन्हें आगे बढ़ाएं। बता दें कि 7, 8 और 9 दिसंबर को सेक्रेटरीट के अहाते में निकलिस रोड और टैंक बंड के इलाक़ों में तेलंगाना हुकूमत के 1 साल मुकम्मिल होने के सिलसिले में शानदार पैमाने पर तक़रीबात मुनक़्क़िद की जा रही है, जिसे भी उन्होंने कामयाब बनाने की अपील की। इन प्रोग्राम्स में स्टॉल्स भी होंगे। रेवंत रेड्डी ने आवाम से इन त्योहारों में शिरकत की अपील की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मालेगांव से मुंतखब MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने आज महाराष्ट्र असम्बली में हलफ लिया। मुफ्ती इस्माइल ने आज रुकन असम्बली के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। बता दें कि महाराष्ट्र के इंतखाबात में मजलिस ने 16 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिसमें से सिर्फ मुफ्ती इस्माइल कामयाब हुए। मुफ्ती मोहम्मद खालिक मी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही व तौफ़ीक़िही ततिम्मुस्सालिहात वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक, जिसे महाराष्ट्र असम्बली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह पाक के नाम पर हलफ लेता हूँ कि भारतीय कानून की पासदारी करते हुए भारत की अखंडता और सालमियत के लिए जद्दोजहद करता रहूँगा और बहैसियत MLA अपनी जिम्मेदारियों और अपने फ़राइज़ को पूरी ईमानदारी के साथ अंजाम देता रहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। BRS का लेजिस्लेटिव इजलास पार्टी के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला KCR की रिहाइशगाह एर्रावली में इतवार की दोपहर मुनक़्क़िद होगा। ये इजलास अहमियत का हामिल है क्योंकि तेलंगाना असम्बली के सरमाई इजलास का आगाज़ 9 दिसंबर से होने वाला है। पार्टी ज़राए के मुताबिक BRS MLAs और MLCs को हिदायत दी गई है कि वो इस इजलास में शिरकत करें, जहां पार्टी क़यादत तेलंगाना की आवाम की जानिब से असम्बली में उठाए जाने वाले मसाइल पर हिकमत अमली तैयार करेगी और रियासती हुकूमत से गैर मुकम्मिल वादों पर सवाल करेगी।
तेलंगाना कांग्रेस के 1 साल की तकमील होने के मौके पर चार मीनार के दामन में अवामी हुक्मरानी अवामी कामयाबी के उन्वान से एक तकरीब मुनक़िद हुई। इस तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट व BC वेलफेयर पुन्नम प्रभाकर, राज्यसभा के रुकन अनिल कुमार यादव, MLC आमिर अली ख़ान, MLA दानम नागेंद्र और रियासती लाइब्रेरी चेयरमैन डॉक्टर रियाज व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत को 1 साल मुकम्मिल हो चुका है, जो अवामी अमंगों के मुताबिक तश्कील पाई है। उन्होंने कहा हुकूमत ने 48 घंटों में ख़वातीन के लिए RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फ़राहम की, जिससे अब तक 116 करोड़ ख़वातीन मुस्तफ़िद हो चुकी है। उन्होंने मज़ीद कहा आरोग्यश्री की हद को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है, जबकि 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपये में गैस सिलेंडर की सहूलत भी फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा किसानों के 2 लाख रुपये के क़र्ज़ मुआफ़ किए गए और सरकारी स्कूलों में 1100 करोड़ रुपये के अखराजात से बुनियादी सहूलतों की फराहमी की गई। अलावा अज़ी गुज़िश्ता 1 साल में 55,143 सरकारी मुलाजिमतें फ़राहम की गई है। प्रोग्राम के दौरान उन्होंने अपोजिशन जमातों को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वह हुकूमत की कारकर्दगी को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడి నేటికి 1 సంవత్సరం 3వ తారీఖు డిసెంబర్ 2023 నాడు ఫలితాలు వచ్చినప్పటికీ 7వ తేదీ నాడు లాల్ బహదూర్ స్టేడియం సాక్షిగా రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా, బట్టి విక్రమార్క గారు ఉప ముఖ్యమంత్రిగా, మేమంతా మంత్రులంగా తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ప్రజాపాలన ఏర్పడ్డది. ఒకవైపు లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో ప్రమాణం చేస్తూనే ముళ్ళ కంచెల బందీలైనటువంటి ప్రగతి భవన్ కంచెలు తెప్పి ప్రజాస్వామ్యానికి బలహీన వర్గాలకు పేరున్నటువంటి జ్యోతిబా పూలే పేరు పెట్టుకొని ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో 1 సంవత్సర పరిపాలన ముగించుకున్నాం. 1 సంవత్సరం ప్రజాపాలన విజయోత్సవాలు అయితే ఉన్నాయి. ప్రతిపక్షాలు ఇవాళ ఏదో వీడియో ప్రజెంటేషన్ చేస్తూ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను చూపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. స్వాగతం, ప్రతిపక్షాలుగా బాధ్యత ఉన్నది. మీరు మీ యొక్క బాధ్యతను సక్రమంగా నిర్వహించండి. తెలంగాణ అభివృద్ధికి మీ సలహా సూచనలు కూడా తీసుకుంటాం. కానీ నూతనంగా ఏర్పడ్డ ప్రభుత్వాన్ని నెలకి పిల్లి శాపనార్థాలు పెడుతూ కూలిపోతుంది, ప్రభుత్వాన్ని నిలవనీయం, ప్రభుత్వాన్ని నడవనీయం, మేము చెప్పినట్టే వినాలి, మేము చెప్తే ఏం చెప్తుంది అని ఇంకా అధికారంలో ఉన్నాం అనుకొని శాసించే రీతిలో చేస్తే అది ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వంలో నడవదు. ప్రజలు ఒక సంక్షేమం కొరకు పనిచేసే ప్రభుత్వం అనే మాట మనం చేస్తూ ఉన్నాం. మీ అందరికీ తెలుసు, ప్రభుత్వం ఏర్పడిన 48 గంటల్లో తెలంగాణ అక్క చెల్లెలందరికీ ఉచితంగా బస్ సౌకర్యాన్ని కలిగజేసినాం. ఇలా 116 కోట్ల మంది అక్క చెల్లెళ్ళు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 4,000 కోట్ల విలువ ప్రయాణాన్ని వాడుకున్నారు. 5 లక్షల నుంచి 10 లక్షల ఆరోగ్యశ్రీ. దాని తదుపరి గతంలో పేదలకు కరెంటు బిల్లు కట్టలేని పరిస్థితి ఉంటే మీటర్లు గుంజుకపోయినటువంటి పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు రాష్ట్రంలో 60, 70, 80 గ్రామీణ శాతాలలో 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ వాడుకుంటున్నారు. 500 గ్యాస్ సిలిండర్ తీసుకుంటున్నారు. గతంలో 1 లక్ష రూపాయలు రుణమాఫీ చేయాలంటే 5 సంవత్సరాలు ఇబ్బంది పడ్డటువంటి గత ప్రభుత్వ పరిస్థితి నుంచి మాట ప్రకారంగా 2 లక్షలు రైతాంగానికి రుణమాఫీ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ 8-9 నెలల్లో చేసినటువంటి ఘనత ఈ ప్రభుత్వంది. ఇది మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో మాత్రమే సాధ్యమైందనే మాట సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నా. शहर हैदराबाद में एक चोर ने एम्बुलेंस को चोरी करके सनसनी फैला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस हरकत में आई और हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर फिल्मी अंदाज में ताक़ुब करते हुए सूर्यापेट के करीब चोर को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक हयात नगर में एक 108 एम्बुलेंस चोरी की गई। चोर एम्बुलेंस का सायरन बजाते हुए विजयवाड़ा की तरफ जा रहा था। चटियाल के करीब पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान चोर ने एक ASI को टक्कर मार दी और आगे फ़रार होने की कोशिश की। आखिरकार पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम के ख़िलाफ़ पहले भी चोरी के कई केसेस दर्ज हैं। एम्बुलेंस के टक्कर से ज़ख्मी होने वाले ASI जॉन रेड्डी को शदीद चोटें आई, जिन्हें फौरी तौर पर हैदराबाद के एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया।
नारायणपेट एमएलए डॉक्टर सी प्रियंका रेड्डी ने एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 108 एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डॉक्टर प्रियंका रेड्डी ने कहा कि ये नई एम्बुलेंस गाड़ी इलाके की आवाम के लिए एक अहम सहूलत साबित होगी और फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी में मददगार साबित होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत की जानिब से सेहत के शोबे में तरक्की के लिए मुसलसिल इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि अवामी सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के इक़दाम से दूर दराज इलाक़ों में भी लोगों को सेहत की सहूलतें फ़राहम की जा सकेंगी, जो कि हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। ज़िलाई सतह पर मुनक़िदा तालीमी व साइंसी नुमाइश प्रोग्राम में ज़िला कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। ये प्रोग्राम महकमे तालीम के ज़रिए एहतमाम मुशीराबाद के रामनगर में एक खानगी स्कूल में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर ख़िताब करते हुए ज़िला कलेक्टर ने कहा कि साइंस के बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं और आज जो भी तरक्की और सहूलतें मैसर है वो साइंस ही की देन है। ज़िला कलेक्टर अनुदीप ने कहा कि तलबा को स्कूली सतह से ही मुस्तक़बिल के साइंसदानों के तौर पर तैयार किया जाना चाहिए। बाद ज़िला कलेक्टर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ़ स्कूलों के तलबा की जानिब से तैयार करदा 147 साइंसी मॉडल्स का मुआयना किया। इस नुमाइश में 6वीं से 10वीं जमात के 78 स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में DEO, असातिज़ा, तलबा और दीगर ने शिरकत की। पुराने शहर के इलाके काला पत्थर में एक स्कूल में पुलिस की जानिब से साइबर क्राइम, मंशियात और शी टीम के मौज़ूआत पर एक आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में DCP साउथ जोन स्नेहा मेहरा और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान तलबा को मंशियात के नुक़सानात, साइबर क्राइम के ख़तरात और शी टीम की खिदमात से मुताल्लिक़ शऊर बेदार किया गया। पुलिस ने बच्चों को इन मौज़ूआत की अहमियत से वाकिफ़ करवाते हुए बताया कि कैसे वो ख़ुद को इन जराइम से महफूज रख सकते हैं। बाद DCP स्नेहा मेहरा ने मीडिया से बात करते हुए इस प्रोग्राम की तफसीलात बताई। मॉर्निंग आज सेंट मार्क्स बॉयज़ टाउन स्कूल काला पत्थर में साउथ जोन पुलिस अलॉन्ग विद शी टीम्स एंड साइबर क्राइम्स, यहाँ पे हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किया। स्कूल की भी 70th एनिवर्सरी चल रही है, तो उसके मौके पे यहाँ पे बच्चों को साइबर क्राइम्स और विमेन रिलेटेड क्राइम्स और ड्रग्स अवेयरनेस के बारे में ये प्रोग्राम कंडक्ट किया गया, जिसमें ये जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं 8th, 9th, 10th क्लास के, इनको किस तरीके के क्राइम्स चल रहे हैं, विमेन के अगेंस्ट ऑनलाइन सोशल मीडिया क्राइम्स कैसे प्रोपगेट हो रहे हैं, और जो ड्रग्स और गांजा और ई-सिगरेट्स का जो कंजम्पशन है उसके अगेंस्ट कैसे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, उसके बारे में सभी पुलिस ऑफिसर्स ने बताया। शी टीम से भी जो ACP हैं और इंस्पेक्टर हैं, और जो साइबर क्राइम से भी सब इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने स्पेशलाइज्ड क्राइम्स के बारे में बच्चों को बताया। वी होप दैट ये जो बच्चे हैं हमारे देश का फ्यूचर हैं, देश का भविष्य हैं, किसी भी तरह के इस क्राइम में ना उलझें। और साउथ जोन पुलिस इन बच्चों के फ्यूचर के लिए कमिटेड है, और किसी भी तरीके का क्राइम होता है तो ये किसी भी पुलिस स्टेशन में आके और DCP ऑफिस या ACP ऑफिस में भी आके रिपोर्ट कर सकते हैं। उस बारे में इनको ईज़ करने के लिए और एक अवेयरनेस और इंट्रोडक्शन के लिए बच्चों के साथ ये प्रोग्राम रखा है। थैंक यू। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत का 1 साल मुकम्मिल, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ट्वीट। पुन्नम प्रभाकर की गवर्नर KCR और किशन रेड्डी से मुलाकात, तेलंगाना तल्ली के नकाब कुशाई तकरीब में शिरकत की दी दावत। एर्रावली में कल BRS पार्टी का लेजिस्लेटिव इजलास, अहम मौजू पर होगा तबादिल ख्याल। तेलंगाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ताजिर ख़वातीन प्रोग्राम, वुज़रा भट्टी, विक्रमार्का व सीताक्का ने की शिरकत व किया खिताब।
चार मीनार के दामन में तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद। तकरीब से पूनम प्रभाकर और दीगर ने किया खिताब। तेलंगाना के महबूब नगर में जलजले के झटके, कोई नुकसान की इत्तला नहीं। हैदराबाद में एम्बुलेंस की चोरी, फिल्मी अंदाज में पुलिस ने चोर को कर लिया गिरफ्तार। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।